Good morning, children. In our previous class, we studied about industry, the first part of industry. Do you remember what we studied? Yes, we studied about what is manufacturing. What is manufacturing? Changing raw materials into products of more value to people. Then we studied about classification of industries. Industries can be classified on the basis of raw material size and ownership. On the basis of raw material used, industry can be classified as agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based. Then we studied about the classification according to size. Size के आधार पर large scale industry and small scale industry के बारे में हम लोग पढ़े. Then we studied about on the basis of ownership. Ownership में private sector, public sector, joint sector and cooperative sector के बारे में पढ़े. Then we studied about factors affecting location of industry. Do you remember that? Yes. What are the factors? Yes. Raw material, labor, capital, market, water, power, land, transport, communication. Okay. Then we studied about industrial system. Industrial system consists of input, processes and output. इतना हम लोग लास्ट लेसन में पढ़े थे. उसका आगे आज हम लोग पढ़ेंगे. That is industrial region. What is industrial region? ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन क्या है हम लोग समझेंगे. अभी सपोज एक जगह है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ. ठीक है, यहाँ पर एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, तो इसको देखते और एक इंडस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट होता है और एक इंडस्ट्री स्टार्ट होता है. इस तरीके से पास पास बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप होता है. ओके, व्हेन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट close to each other and share the benefit of their closeness. When a number of industry locate close to each other and share the benefit of their closeness, अपना mutual जो बेनिफिट है वो एक दूसरे से बेनिफिट लेता है, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स. ठीक है, एक ही जगह पर जब एक इंडस्ट्री के साथ बहुत सारा इंडस्ट्री स्टार्ट होता है और उसका फ़ायदा एक दूसरे इंडस्ट्री लेते हैं, एक साथ एक दूसरे का बेनिफिट लेता है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स. ओके, so what is industrial region? Industrial region means when a number of industries locate close to each other and share the benefit of their closeness. Some of the industrial regions of the world are, जो इंडस्ट्रियल रीजन है, वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल रीजन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा है. ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, then Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. Okay, these are the world, some of the industrial region, some of the industrial region of the world, that is Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. And the industrial regions tend to be located in the temperate area. जो industrial region है वो हमेशा कौन से एरिया पर ज़्यादा स्थापित होना चाहता है, मतलब मोस्टली हम लोग देखा गया है it is located near, tended to located near the temperate area first, second near seaport and third near coal field. Okay, so
The industrial region, it is tend to be located in the temperate area. Temperate area. What is temperate area? Temperate area, अभी ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर, ओके, इक्वेटर and 23½ Tropic of Cancer, tropic, the southern hemisphere में 23½ Tropic of Capricorn, okay, and 66½ in the northern hemisphere. This is known as Arctic Circle, and here 66½ degree, that is known as Antarctic Circle, okay. So the temperate area means the area ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच जो एरिया है, ओके, दिस एरिया इज, और उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो एरिया है इसको हम लोग टेम्परेट एरिया बोलता है, ओके, इसको टेम्परेट एरिया बोलते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द industries, iron and ore industry are located in this place. Why? इसका क्लाइमेट क्या है? इट इज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट. मॉडरेट क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत अच्छा मॉडरेट है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है. तो मॉडरेट क्लाइमेट होने के कारण मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन दिस टेम्परेट एरिया, ओके, सब नहीं, मोस्ट ऑफ, ठीक है. और इसमें मेनली आता है यूएसए, आता है जर्मनी, यूरोप जितना भी है इसी ये टेम्परेट एरिया में आते हैं. हमारे इंडिया का भी हाफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टेम्परेट रीजन में आता है. तो ये सारे कंट्रीज इसके अंतर्गत आता है. तो जो इंडस्ट्री लोकेट करने का कोशिश करते हैं दे आर टेम्परेट एरिया में सेटअप करता है. देन सी पोर्ट, नियर सी पोर्ट. सी पोर्ट क्यों है? इसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसलिए कर सकते हैं. एंड कोल्ड फील्ड के पास रहना है, क्योंकि कोल्ड फील्ड हमको पावर चाहिए इंडस्ट्री चलाने के लिए, तो कोल्ड फील्ड के पास ये इंडस्ट्री सेटअप होता है. तो वर्ल्ड का जो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. और इट इज ये कोशिश करता है कि वो एरिया पर इसको स्थापित करे जो टेम्परेट एरिया हो, नियर सी पोर्ट हो और कोल्ड फील्ड भी हो. अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में. इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स लाइक मुंबई पुणे क्लस्टर, आपके मैप में दिया है, आप देख लीजिए, उसमें दिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया में. फर्स्ट है मुंबई पुणे क्लस्टर, सेकंड बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, थर्ड हुगली रीजन, फोर्थ अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, फिफ्थ है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, सिक्स्थ है विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, सेवेंथ है गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन और एट्थ है कोल्लम त्रिवेंद्रम क्लस्टर्स. ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया का. और भी माइनर बहुत सारा रीजन है, लेकिन दिस आर ऑल द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है, तो ये इंडस्ट्री हम लोग देखें कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सेटअप करता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या है, डिसास्टर भी हो सकता है. डू यू नो व्हाट इज डिसास्टर? क्या है डिसास्टर? क्या है डिसास्टर? इज ए सडन इंसिडेंट विच रिजल्ट इन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड एनवायरनमेंट, है ना. डिसास्टर में क्या है, डिसास्टर होने से क्या होएगा, लाइफ का लॉस होता है, लोग मरते हैं, इसमें प्रॉपर्टी नुकसान होता है, एनवायरनमेंट नुकसान होता है. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसास्टर, वन इज नेचुरल डिसास्टर एंड अनदर वन इज मैन मेड डिसास्टर. नेचुरल डिसास्टर क्या है, जो नेचर के तरफ से जो डिसास्टर होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हुआ, वोल्केनो हुआ, फ्लड हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, दिस आर ऑल नेचुरल डिसास्टर. एंड मैन मेड डिसास्टर क्या है, जो मैन के द्वारा
ह्यूमन के द्वारा जो डिसास्टर होते हैं, जैसे बम ब्लास्ट होता है, इवन हम लोग इंडस्ट्रियल डिसास्टर को भी हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री जब हम सेटअप करते हैं तो ये बात याद रखना कि इंडस्ट्रियल डिसास्टर भी होता है। क्या है इंडस्ट्रियल डिसास्टर? जब इंडस्ट्री से कोई भी पॉइजनस टॉक्सिक जो गैस है वो लीक होता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को उससे नुकसान होता है, उसका मृत्यु होता है, तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिसास्टर कहेंगे। तो वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिसास्टर that happened in India is on Bhopal on 3rd December 1984. It was a technological accident, एक technological accident था which highly poisonous methyl and isocyanate gas जो है लीक हुआ था, leak out from a pesticide factory of यूनियन कार्बाइड जो एक अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पेस्टिसाइड बनाता वाला फैक्ट्री था, उससे जो है गैस लीक हुआ था, जिससे thousands of people died in this gas tragedy, and those who survived are still suffering from one or more elements like blindness, impaired immune system. आज भी लोगों उसका मतलब जो इंसिडेंट हुआ उससे लोग आज भी बहुत सारे बीमारी जैसा ब्लाइंडनेस है, स्किन डिसीज है, ये सब से आज भी लोग जूझ रहे हैं। द अदर इंसिडेंट टुक प्लेस इन चाइना ऑन 23rd December 2005 व्हेन ए गैस वेल ब्लो आउट। गैस वेल मीन्स जब हम गैस ड्रिल करते हैं ना, वो वेल से गैस लीक आउट हुआ, जिससे 243 पीपल मारे गए। द रीसेंट विशाखापट्टनम गैस लीक, आप अभी न्यूज़ में सुने होंगे, अब जब हम लॉकडाउन में थे तो अभी रिसेंटली हुआ। द विशाखापट्टनम गैस लीक वाज एन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट that happened on 7th May 2020 which resulted in the death of 11 people. तो इंडस्ट्रियल डिसास्टर ये है, इंडस्ट्रियल से जब पॉइजनस गैस लीक आउट होता है, ओके। एंड रिस्क रिडक्शन मेजर, तो इसको हम कैसे रोक सकते? अगर रोक तो नहीं सकते, हो सकता है रोकने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन होता है तो क्या मेजर्स हम इसके लिए लेंगे? तो इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सेट अप फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। सो द रिस्क रिडक्शन मेजर्स क्या है? फर्स्ट क्या है? द इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सेट अप फार अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया से दूर इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप करना चाहिए। एंड पीपल स्टेइंग इन द सराउंडिंग एरियाज शुड बी aware of the storage of dangerous substance and their possible effect in the case of an accident। जो उसके पास रहने वाले लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री से क्या गैस लीक हो सकता है और इससे क्या खतरा हो सकता है, इसका उनको जानकारी होना चाहिए, उनसे उनको अवेयर करना चाहिए। और नेक्स्ट है फायर वार्निंग सिस्टम एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड। और फैक्ट्री ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टोरेज capacity of toxic substance should be limited, and next effective waste management facility should be set up। तो इस तरीके से करके हम जो है रिस्क रिडक्शन मेजर ला सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजर इंडस्ट्रीज। मेजर इंडस्ट्रीज मेजर इंडस्ट्री। मेजर इंडस्ट्रीज क्या क्या है? फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सेकंड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड थर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईटी कहेंगे, ओके। सो the major industries are iron and steel industries, textile industries and information and technology, IT, okay, जिसको हम IT कहते हैं। तो इन टुडे
in our class, today's class we will discuss about iron and steel industry. तो आज हम लोग पढ़ेंगे iron and steel industry के बारे में. और एक इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्री बोलने से nowadays a new industry emerge, that is emerging industry or non sunrise industry. उसी में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज जो है इसी के अंतर्गत आते हैं. Okay, so today we will study about iron and steel industry और बाकी दोनों इंडस्ट्री का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. Okay, the iron and steel industry. The iron and steel industry are located Germany, USA, China, Japan and Russia. Like other industry, iron and steel industry also consist of various system. इन इंडस्ट्री को हम एक सिस्टम बोलते हैं. हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इंडस्ट्रियल सिस्टम. तो इंडस्ट्रियल सिस्टम इसमें भी 3 पार्ट है. फर्स्ट वन इज इनपुट, सेकंड प्रोसेसेस एंड थर्ड इज आउटपुट. ओके, इस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. कोई भी सिस्टम में क्या 3 पार्ट होते हैं. इनपुट मतलब जो हम उसमें निवेश करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग फार्मिंग सिस्टम में भी पढ़े थे. फार्मिंग सिस्टम में भी क्या है, 3 है, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है. उसी तरह इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी 3 पार्ट है. एक है इनपुट. इनपुट मतलब क्या हम उसमें निवेश करते हैं, क्या हम डालते हैं. जैसे रॉ मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, मनी हुआ, पावर, जो भी हम इसमें इनपुट करते हैं. प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस से, क्या प्रोसेस से उसमें रॉ मटेरियल चेंज होता है फिनिश प्रोडक्ट में. सो क्या प्रोसेस के द्वारा होता है. एंड आउटपुट क्या है, वो फिनिश्ड गुड, लास्ट में वो क्या गुड बनकर सामने आते हैं, द फिनिश गुड होता है. लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आल्सो कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. ओके, दिस इंडस्ट्री इज ए फीडर इंडस्ट्री. ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम फीडर इंडस्ट्री कहते हैं. वाई? बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट्स होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है, जैसा भी स्टील हुआ, आयरन हुआ, आउटपुट. देखो मैंने बोला ना 3 सिस्टम का, जैसा 3 सिस्टम है, इसमें इनपुट है, प्रोसेस है एंड आउटपुट है. आउटपुट में जैसा स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन या स्टील जो है आउटपुट आता है, तो ये क्या है, दूसरा इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल दिस इंडस्ट्री एज ए फीडर इंडस्ट्री. ओके, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री. द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री, इसके लिए जो इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट जो हम इनपुट डालते हैं वो क्या क्या है, जैसा रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन. रॉ मटेरियल जैसा है, आयरन ओर होता है, कोल होता है या लाइमस्टोन होता है. और इसके बाद और क्या क्या इनपुट्स इसमें हो सकता है, लेबर चाहिए, ओके, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब हम सेटअप करते हैं तो ये सारा चीज होना चाहिए. दैट आई स्टडीड इन आवर फर्स्ट लेसन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े. मेरे रिविजन में भी बताया कि कोई भी इंडस्ट्री जब हम लोग सेटअप करते हैं, क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है, लेबर्स चाहिए. तो दिस आर ऑल थिंग्स वी नीडेड. ये सब का हमें ज़रूरत है. तो इसके लिए जो इनपुट है, ये है आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, ये है रॉ मटेरियल एंड लेबर, कैपिटल, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. और प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस. जब हम ये आयरन से हम आयरन बनाते हैं, आयरन ओर रॉ मटेरियल, इससे जब हम ये प्रोसेस थ्रू प्रोसेस वी आर कन्वर्टिंग दिस आयरन ओर इनटू स्टील. और ये बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरता है. फर्स्ट क्या है, द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग. ठीक है, फर्नेस में हम लाते, ब्लास्ट फर्नेस देखिए आपके टीवी स्क्रीन में दिया है, इसमें डालते हैं. उसके बाद ये अंडरगोज स्मेल्टिंग, देन इट इज देन रिफाइंड. The output obtained is steel which is used as raw material by other industry. जो output होता है वो क्या है, स्टील होता है जो दूसरा इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं. एंड स्टील इज टफ, it can be easily shaped and cut and made into wire.
ठीक है, बाई एडिंग अदर मेटल्स सच एस अल्यूमिनियम, निकल, कॉपर इन लिटिल अमाउंट, डिफरेंट अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड। अभी इसी में ये रॉ मटेरियल में अभी हम अल्यूमिनियम, निकल और कॉपर डालकर इसमें प्रोसेस के द्वारा मिश्र धातु बना सकता है, ठीक है, इसको हम एक अलग अलॉय या मिश्र धातु बना सकते हैं। ये मिश्र धातु जो है ये बहुत हार्ड रहता है। दिस अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, ये हार्डनेस देता है, टफनेस एंड एबिलिटीज टू रेसिस्ट रस्ट और जंग रोधक बन जाता है। ये मिश्र धातु, जब मिश्र धातु से हम कुछ भी चीज बनाते हैं तो वो क्या रहता है, हार्ड रहता है, टफ रहता है और जंग निरोधक रहता है, जंग उसमें नहीं पकड़ते हैं। और यूसेस ऑफ स्टील, स्टील का इंपॉर्टेंस क्या है, यूसेस ऑफ स्टील क्या है, देखो हम लोग देखते हैं स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहते हैं हम स्टील को, क्यों, एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, आप घर में ही देखो ना क्या क्या चीज़ है, घर में आप किचन में देखो चाकू है, ठीक है, सारा चीज़ किससे बना रहता है, या तो आयरन से या स्टील से बना रहता है ना। फिर देखो घर में हम जो सुई नीडल रहता है ना, नीडल रहता है, ये भी किससे बना है, स्टील से बना रहता है। और एवरीथिंग that is made either from iron or steel, mostly everything, okay, and ships है, train है, auto, trucks, ये भी किससे बना होता है, these are all made of steel. Even the safety pins जो हम use करते हैं, ठीक है, and the needles we use are made from steel. और जो oil wells are drilled, जो oil well से हम extract करते हैं ना, oil extract करते हैं या gas extract करते हैं, तो ये भी क्या है, स्टील मशीनरी है, स्टील मशीनरी से ही हम उसको extract करते हैं। एंड स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह पर जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये स्टील पाइपलाइन से ही करता है। एंड मिनरल आर माइंड विथ स्टील इक्विपमेंट्स, फार्म मशीन्स, जो एग्रीकल्चर में जो मशीन्स यूज करते हैं वो भी दैट इज आर मेड ऑफ स्टील। एंड बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, तो हम देखें कि हर एक चीज हम स्टील से हम सारे चीज यूज करते हैं। तो स्टील इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसीलिए हम इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कहते हैं। एंड इट इज ए फीडर इंडस्ट्री जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल देते हैं। और क्या है, चेंजिंग लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जब हम इंडिपेंडेंस से पहले देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे, तो इंडिपेंडेंस से पहले जो लोकेशन होता था, जो भी आयरन और इंडस्ट्री का जो लोकेशन होता था, इट वाज नियर टू द कोल फील्ड, जहाँ पर कोल फील्ड मिलता था, कोल फील्ड होते थे, या रॉ मटेरियल जहाँ पर मिलता था, मटेरियल्स जहाँ पर होते थे, ठीक है, और वाटर फैसिलिटी होता था, वहीं पर ये एस्टैब्लिश होता था, वहीं पर इसको लोकेट करते थे हम प्री इंडिपेंडेंस से पहले। लेकिन आफ्टर 1950 के बाद जो इंडस्ट्री सेटअप हुआ वो हम लोग देखते हैं कि वो पोर्ट के पास जो है ये इंडस्ट्री सेटअप होने लगा। क्यों ये सी पोर्ट के पास ये आयरन इंडस्ट्रीज लोकेट होने का रीज़न है, बिकॉज by this time steel works had become very large and iron ore have to be imported from overseas. इस समय तक क्या था, जो हमारे स्टील इंडस्ट्री जो है ये बहुत लार्ज, बहुत विशाल मात्रा में फैल गया था और आयात और निर्यात जो है हम सी से करने लगे, क्योंकि हमको मालूम है ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, सी ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है। इसमें सबसे चीपर ट्रांसपोर्ट कौन सा रहता है, सी ट्रांसपोर्ट है ना। तो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसानी हुआ। इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस और 1950 के बाद जो भी लोकेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, वो इंडिया में सी पोर्ट के पास ज़्यादा होने लगे। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। अभी हम लोग इंडिया में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। डू यू नो वाई, क्यों हमारे यहाँ पर इतना एक वेल डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है? बिकॉज इंडिया हैज़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए हमको, ठीक है, क्या क्या है बता दिया मैंने, आयरन ओर है, कोल है, मैग्नीशियम, ये सब चाहिए। एंड चीप लेबर मिलता है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट सुविधा है एंड मार्केट है। ओके, द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया आर, तो ये सारे रॉ मटेरियल ये सब हमें ईजिली अवेलेबल होता है। एंड और
जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है, इंडिया का जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स है वो है, मैप में देखिए आप, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड बर्नपुर। ये एक रीजन है, ये इतना जो सेंटर्स जो मैंने बताए एक रीजन है, भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड बरनपुर, and these centers spread over 4 states, that is West Bengal, Jharkhand, Orissa and छत्तीसगढ़। इंडिया के जो 4 स्टेट है यहाँ पर फैला हुआ ये। और अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर भद्रावती इन कर्नाटका एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश एंड सेलम इन तमिलनाडु। ठीक है, ये है इंडिया के जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहाँ पर लोकेट हुए हैं। अभी हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को के बारे में पढ़ेंगे। टाटा देखा है ना आप लोग, ये बस वगैरह में देखा होगा, उसमें लिखा है टाटा, देखा है आपको, देखा है ना। तो उसके बारे में, टिस्को के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री, दैट वाज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, एंड इट वाज प्राइवेटली ओन्ड। Tisco was started in 1907 by Jamshedji and Tata at Sakchi. ओके, साक्षी पर 1907 में जमशेदजी एंड टाटा के द्वारा ये स्थापित किया गया था। लेटर ऑन साक्षी was renamed as जमशेदपुर। बाद में इसका नाम हुआ जमशेदपुर। जमशेदजी टाटा के नाम से इस जगह का नाम जमशेदपुर पड़ा। ओके, एंड व्हाई Jamshedpur was chosen to set up the steel plant? Why this place is chosen to set up the steel plant for? And Sakchi was chosen to set up the steel plant for several reasons. बहुत सारा रीज़न है जिसके कारण ये प्रदेश को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए चुना गया। Because first, this place was only 32 kilometers away from Kalimati स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। ये जो एरिया है वो कालीमती स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर है। एंड इट वाज क्लोज टू आयरन ओर, कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट, एंड इट वाज क्लोज टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड ए लार्जर मार्केट। एक लार्ज मार्केट जो है कोलकाता देता है। एंड टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम जारिया कोल फील्ड्स, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलमेट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, एंड ये अभी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सारा टिस्को जमशेदपुर में क्यों लोकेट हुआ, क्योंकि ये सारी सुविधाएं साक्षी पर है, इसीलिए जमशेद जी ने यहीं पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन आने से आप ऐसे ही लिखना क्या क्या है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेशंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मार्केट फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो यही सारा आंसर आपको लिखना है अगर क्वेश्चन आता है कि वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन जमशेदपुर। खाली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं, कोई भी इंडस्ट्री पूछा है कि वाई दिस इंडस्ट्री लोकेटेड इन दिस प्लेस, वाई कॉटन एंड इंडस्ट्री सेटअप इन अहमदाबाद, ऐसा पूछने से ये सारा पॉइंट्स आपको एकदम मालूम हो जाना है कि रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो इसके आधार पर आपको लिख सकता है कि क्या रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री के लिए चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकॉज इट वाज क्लोज टू जारिया एंड उड़ीसा एंड इट गेट्स coal, iron and limestone from there, and good transport network है, it was only 30 kilometer away from the railway station, and market facility है, Kolkata provided a large market to Tisco as it is located near to Jamshedpur, and availability of water, वहाँ पर sufficient water है क्योंकि वहाँ पर झारखंड में 2 river है, that is सुवर्णरेखा and कारकाई 2 river वहाँ पर है जिससे उसको sufficient water मिलता है, and sufficient water supply भी होता है, and availability of cheap labor. That's why this
iron and steel industry located in Jamshedpur. And Jamshedpur, several other industry plants were set up after TISCO. TISCO के बाद बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्लांट्स वहाँ पर सेटअप हुआ. जैसा हम लोग यही पढ़े, इंडस्ट्रियल रीजन किसको कहते हैं. एक इंडस्ट्री सेटअप होता है तो उसके आधार पर दूसरा इंडस्ट्री भी सेटअप होता है. तो इसी तरीके से टिस्को में भी, जमशेदपुर में भी टिस्को के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स वहाँ पर सेटअप हुआ. जैसा they produce chemicals, locomotive part, agriculture equipments, machinery, tin plate, cable and wire, etc. When we set up an industry in a place, many other industry related to that will come up there. जब हम एक इंडस्ट्री सेटअप करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप होते हैं. अभी हम अंडमान एंड निकोबार का बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री यहाँ पर है दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिज्म को हम एक इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं, हालांकि ये सर्विस सेक्टर में है. तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री सेटअप है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं. आप लोग देखे होंगे, आके कहाँ जाते हैं उस लोग, ये देखो सागरिका एम्पोरियम है, वहाँ जाते हैं. वहाँ जाकर क्या लेते हैं आप देखा है, उस लोग शेल से बना हुआ चीज़, जो हैंडीक्राफ्ट्स जो होता है, कोकोनट ऑयल लेता है, स्पाइसेस लेता वाला देखता है. तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री हम लोग लास्ट लेसन में पढ़े, व्हाट इज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री. जब घर वाले घर में ही बैठकर या कुछ पड़ोसियों लोग मिलकर जो इंडस्ट्री चलाते हैं उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं. तो धीरे धीरे यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री जैसा शेल मेकिंग हुआ, क्राफ्ट का हुआ, एंड कोकोनट ऑयल का हुआ, स्पाइसेस कलेक्शन हुआ, एंड हैंडीक्राफ्ट्स एक्सेट्रा. यहाँ पर जो मतलब बहुत सारे चीज़ जो हैं यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ. तो एक इंडस्ट्री से बहुत सारे इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हुआ. और हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, होम स्टे ज़्यादा हो गया, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, फिर क्या है, स्कूबा डाइविंग है, सी वॉक है. इस तरह बहुत सारा इंडस्ट्री हुआ और बहुत सारे यूथ्स को जो है इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिला है. तो एक इंडस्ट्री से क्या है, उसका उस स्टेट का, उस सिटी का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जिससे उस सिटी का डेवलपमेंट भी होता है. एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पिट्सबर्ग. ओके, पिट्सबर्ग इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हब ऑफ यूएसए का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक सेंटर है पिट्सबर्ग, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टील सिटी ऑफ यूएसए. वही आप अपना इसमें टीवी स्क्रीन में देखिए, उसमें आपको देख सकते हैं कि बिकॉज द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल इन पिट्सबर्ग में ही कोल अवेलेबल है. आप देखिए पिट्सबर्ग से ही कोल वहाँ पर लेके आता है. आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एंड अबाउट 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम पिट्सबर्ग, एंड दिस माइंस एंड पिट्सबर्ग आर कनेक्टेड थ्रू ए फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे से कनेक्टेड है, जो चीपर है, विच इज चीपर. Trains carry the ore from Great Lakes to the Pittsburgh area, and the river provide water supply, sufficient water supply to this industry, and finished steel is transported to the market by both land and water routes. यहाँ से जो है water route से जो है जो finished product है उसको ले जाता है. and इसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री वहाँ पर हुआ, जैसा the Pittsburgh area has many factories other than steel mills. These use steel as the raw material to make many different products such as रेलरोड इक्विपमेंट्स, हेवी मशीनरी एंड रेल्स. ठीक है, तो पिट्सबर्ग में हम लोग देखा कि उसको हम यूएसए का हब, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का हब है, इसीलिए दिस प्लेस इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ यूएसए. ओके, तो ये है पिट्सबर्ग, एंड जमशेदपुर इज कॉल्ड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया. हमारे जो टिस्को इंडस्ट्री है, ठीक है, जमशेदपुर का, इसको हम कंपेयर करता है यूएसए का पिट्सबर्ग के साथ. सो जमशेदपुर इज नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया. सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन the doors to rapid industrial development all over the world. तो iron and steel industry start हुआ, and it opened door to other industry. इससे द्वारा बाकी सारा इंडस्ट्री चलने लगा. Almost all sectors
depend heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. अपने बाकी सारे जो इंडस्ट्री है, जो प्राइमरी एंड टेरिशरी है और सेकेंडरी में भी बाकी जो इंडस्ट्री है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड है. दैट्स व्हाई वी कॉल iron and steel industry as the backbone of all industry. Okay, in our next class we will discuss about the cotton textile industry and information technology. Hope you understood this lesson. Stay home, stay safe. God bless you all. Thank you.